सो हे गाइस, मैं हूं किशन चौधरी और स्वागत है आपका मेरे नए शो में जिसका नाम है डॉक्टर टॉक विद किशन चौधरी। और आज हमारे साथ हैं यामिनी श्वनकार, जो कि मेरी कॉलेज मेट और मेरी काफ़ी अच्छी मित्र हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे, पूछेंगे इनकी जर्नी, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, सारी चीज़ें। आप सब मेरे साथ जुड़े रहना। बात करते हैं यामिनी से। तो यामिनी, आप अपने बारे में बताएं और कैसे हैं आप, सबसे पहले ये चीज़ बताएं। सबसे पहले नमस्ते सभी को। और मैं आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी nowadays. I was not that before like this. I am much more confident. I am unique and I'll excel whatever I'll do. And that is who I am, and that makes me bold. And now I love myself to the utmost level that I never ever seen myself like this before. So this is who I am. ओके। अभी रिसेंटली कोई ऐसी चीज़ जो आपके माइंड में चल रही हो और जो मेरे लिसनर्स को आप बताना चाहें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशंस, बट राइट नाउ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू टॉकिंग अबाउट माई लाइफ जर्नी एंड एवरीथिंग all about all these things, it's what I have thought before. And right now sitting right just in front of you, this is not my first or the last, many more to come. So this is what I am thinking about right now. दैट्स गुड। मेरा सवाल आपसे सबसे पहला ये है कि कोई ऐसी चीज़ जो रिसेंटली आपके साथ ऐसी हुई हो जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की हो और या की हो, कोई ऐसी चीज़। Life is actually about unpredictableness. You can't predict the life. You can just connect with the life. You can go through life's journey. You have to experience everything. So for me, whatever that I unexpected, that was the day when my mother was died. That was when I was in third year of MBBS. While doing my MBBS, because of her, I am here. So that was really unexpected thing for me. And what I expected is I really want to be myself. The personality I was before, it was the life that I was living because of others. And what they want me to do, I was doing that. But now I am that kind of personality that I expect myself to be like. So this is देखिए, मैं इस चीज़ को एक समझ तो नहीं सकता, लेकिन आई कैन फील यू नाउ, जिस हिसाब से आप एक्सप्लेन कर किया आपने अभी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में कि आपको उनको फेस करना पड़ता है। बाकी होप सो फ्यूचर में आप सारी चीज़ें सही हों। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कोई ऐसी थिंग जो आपकी लाइफ चेंज मोमेंट बनी हो आपके लिए। ऐसा बहुत बार हुआ जो चीज़ें लाइफ में मेरे लिए बहुत ज़्यादा चेंज करने वाला मोमेंट था। बट इसको मैं ऐसे कहूँगी, जब मेरी मदर का डिमाइस हुआ, व्हेन माय मदर वाज डाइड, आई वाज shook from inside. I was eventually, I can say, one of my organ was dead. It was like it's like I don't want to live anymore. That kind of situation, because I was not that much connected to my father. From childhood till I grew up, I have seen my mother. I learned from her. I did everything for her, and I wanted to give that life, to give that luxurious life to my mother. And all of so sudden, when you are about to know कि within 24 hours ऐसा कुछ हुआ जो आप expect ही नहीं करते थे, दैट इज़ कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। बट मैं इस चीज़ को ऐसे डिफाइन करूँगी कि उसके बाद मैंने क्या किया। पहले तो स्टार्टिंग में आई वॉज मच मोर लाइक आई स्टॉप स्टडिंग, आई डू दिस और दैट, आई फोकस ऑन माई फैमिली एंड एवरीथिंग, but that wouldn't make the difference. Nobody could even know about my mother, or what should I even face it. So for that I have to connect with myself first, and then to the others, so that everybody should learn from that. Everybody should learn from my mistakes and learn to do more, to explore more. There are many people who want to learn, but they don't know that one beam of light towards their life. And that one beam of light that came in my life, that is through myself, because of the universe and because of the God. And वो ऐसा टाइम था जब ये सब कुछ होने के बाद
I was completely destroyed. I was completely like, I can't even imagine myself how I am doing at that time. But after that I was like no, अगर मैं इस चीज़ को आगे ले जाती हूँ तो कोई इन चीज़ों को जानने में इंटरेस्ट नहीं रखेगा. अगर मैं उठकर ही खड़े नहीं होंगी तो कोई नहीं जानेगा इस चीज़ों के बारे में. तो रादर देन दैट आई चोज टू स्टैंड अप एंड talk about it, and I accepted the way I am feeling, and it's completely okay that how I am feeling at that situation. But I taught myself that I have to be confident, I have to do this and that, and I have to give myself that much courage to face everything in life, and to be to be in that utmost level, not only in what we are doing, but more than that. So yeah. कोई ऐसी चीज़ लाइक रिसेंटली हार्डेस्ट चैलेंज आपके लिए, आपने अपनी मदर के बारे में बताया, वो चीज़ें आपकी लाइफ से इंटरेक्ट करती हैं, आपको उस चीज़ से निकलना एक आपके फ्यूचर के लिए भी बेटर था कि आपको निकलना ज़रूरी था उस चीज़ के लिए. लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि लाइक ये फैमिली हो गया, हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा कुछ और चीज़ के लिए भी चलते हैं, लाइक हमारा कैरियर हो गया, हमारी काफ़ी सारी चीज़ें हो गई. तो उन चीज़ों के चलते कोई आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हार्डेस्ट चैलेंज आया हो जो आपने फेस किया हो? I think most of the people will agree with this conversation, because what happened जब ऐसा ये challenge मेरे life में आया था, the most challenge you face in your life is you have to be yourself. No one can ever define who you are. No one can ever even justify what you want to do with life. You have to be the one for yourself. So ये ऐसा था कि suppose it's in your brain, and it depends on you. At the end of the day, you met several peoples, you have gained maximum kind of negative, you receive maximum kind of negativity, maybe in the form of criticize, maybe in the form of how do you look, how do you talk, and maybe in the form of how they thought about you. But at the end of the day, it's your choice to make that how do you feel. If you will take it in a positive way, then it will go in a right path, and if you take it in a negative way, you have to be kind to yourself, that no matter what happens, it's their perspective, it's their way of thinking about it. But what you will do the next, that is your choice. So this is the most challenge that every day, not only I, but I think everyone should face. But at the end of the day, I am a much more kind of that person right now who will always be kind towards myself. No matter how much negativity I'll receive, I just shut down the cap of my head or my brain, so that I stop. That's good because हम क्या करते हैं ना, काफ़ी लोग लाइफ में आते हैं ऐसे जिनको हमको इग्नोर करके चलना पड़ता है. तो वो बेटर है कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो और अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करते हैं. Exactly. वो ये चीज़ें लाइफ में होनी भी चाहिए, आई थिंक, मेरे हिसाब से होनी And I चाहिए. think you know that better. ऑफ कोर्स बिल्कुल. मैं एक्चुअली ये हमारा पहला शो है. सब चीज़ मैं चाहता हूँ सारी चीज़ें अच्छी हों, और मेरे से ज़्यादा लाइक जो मैं यहाँ पे हूँ अभी, मेरे हिसाब से मैं कुछ नहीं हूँ अभी. लेकिन मुझे इतना लगता है कि आने वाले कुछ समय बाद जो भी होगा, मैं वहाँ पे जहाँ पे आप बैठे हो, मैं अपने फादर को बुलाना चाहूँगा, जो अगर सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी, मतलब ऑडियंस को, मेरे लिसनर्स को, वो समझा पाएंगे कि लाइफ क्या है और कैसे जीनी होती है, क्योंकि वो एक अच्छे राइटर भी हैं. और बाकी आप हैं आज हमारे शो में, तो आज आपसे बातें करेंगे काफ़ी ढेर सारी. मेरे पास क्वेश्चंस की बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपसे बात करने के लिए. ये चीज़ ज़रूर आगे फुलफिल हो. जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. तो आप मेरे को बताएं कि आप किससे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं? लाइक कुछ थिंग हो गई, कोई भी सेलिब्रिटी हो गया, कोई भी पर्सन हो गया, किस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं? खुद से. खुद से, या बहुत ज़्यादा. लाइक आई लव द वे आई एम ग्रोइंग. आई लव नॉट ओनली अबाउट it's not only about what you achieved in life that defines your success. That is really important for the living, that comfort living. But what kind of mental status you are in, that will ultimately define who you are.
एंड दैट्स द मोस्ट मेन थिंग. सो सबसे पहले खुद से, एंड ये खुद से वाली चीज़ ऑफ कोर्स मेरी मदर से आई है. सो शी इज़ द मोस्ट एडमायरेबल एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन माई लाइफ. आने वाले जो 5 साल होंगे आपकी लाइफ के, आप अपने आप को उन 5 सालों में कहाँ देखना पसंद करोगे? जहाँ आप बैठे हैं अभी, उस जगह बैठकर आपका इंटरव्यू लेते हैं सबसे पहले. होप सो सब अच्छा हो. और थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इतना समझा कि मैं आपके शो पर आऊँ और मैं उस काबिल बनूँ कि आप मेरे को इनवाइट करें उस लेवल तक. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको फिर से एक बार इनवाइट करूँ अपने शो में. बिल्कुल. और सून जल्दी होगा आई थिंक. करेंगे. थोड़ा सा चीज़ें टाइम लेती हैं और मैं आपको एक बार फिर से अपने शो पे इनवाइट करूँगा. और रही बात 5 सालों में आपको कहाँ देखती हूँ, Yeah. तो मैं अपने आप को, फर्स्ट थिंग, it comes on both, whether it's on finances or whether it's on mental health. First we'll talk about mental health, because without mental health you can't reach anywhere. तो सबसे पहले I peaceful, happy and the loveliest, like the most thing I want, कि लाइक बहुत पीसफुल हो, सॉर्टेड हो, बहुत पीस हो माइंड में, मेंटल थिंग में वो. एंड देन व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, यस आई वांट टू बी अ बिलियनर, बिकॉज टू हेल्प अदर्स यू हैव टू बी समवेयर. तो ये चीज़ ज़रूरी है. आप अपने दोस्तों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लाइक आपको दोस्त इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर आपके जो दोस्त हैं, आप उनको कहाँ देखते हो अपनी लाइफ में? आपकी लाइफ से वो कहाँ कनेक्टेड हैं? आपके फ्रेंड्स हो गए, कोई भी हो गया, लाइक जो आपसे अटैच्ड है इन फैमिली, एक फ्रेंड्स. तो फ्रेंड साइड से आपको क्या लगता है कि फ्रेंड्स के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं आप. हाँ, मेरा ये मानना है कि लाइफ में जहाँ कहीं भी हम हैं अभी, इवन मैं आपके सामने भी बैठी हूँ, तो वो चीज़ें मुझे कुछ सिखाने के लिए ही है. किसी से भी मैं मिलती हूँ, नॉट ओनली फ्रेंड्स एंड फैमिली और एवरीवन आई शुड विजिट, और आई एम मीटिंग राइट नाउ, और आई एम सिटिंग विद देम. That is because of some reason, because I have to learn something from them. So I think कि about friends, it's your choice. How do you think? And it doesn't influence me much more in a negative way. Rather than that, it influences me always in a positive way. It's like just before 2 days back, I was having a conversation, and at that time, I just lost my mental power, mental control at that time, and whoosh, I was like, no, I have to do in a certain way. I'm wrong here, and I have to switch it to the positive thing. So it's your duty to behave in a certain way, to be positive and to be who you are. And how do you think? क्योंकि लाइफ में मेरा मानना ये है कि फैमिली सपोर्ट करती है सारी चीज़ों में, लेकिन लाइफ में आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स बनेंगे, लेकिन आपकी लाइफ का एक फ्रेंड ऐसा होगा जो आपके लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा. तो लाइफ में वो फ्रेंड के बारे में आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं. वो आपको सुन रहा हो, होप सो सुन रहे होंगे. बिल्कुल. मैं एक नहीं, मैं 2 का नाम लेना चाहूँगी यहाँ पर. साइमन रे, दैट इज़ अ रे ऑफ माई लाइफ, टू बी ऑनेस्ट. एंड सेकेंड वन इज़ ज्योति रेखा मोहंती. In every ups and downs, in every situation of life, she was always being there for me. And I can smell the feeling of togetherness with them, with both of them. So yeah. लाइफ में ज़रूरी भी है दोस्त, क्योंकि जो चीज़ें हम पेरेंट्स वगैरह के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो उस टाइम पीरियड पे सिर्फ दोस्त ही काम आते हैं. ये रियलिटी है. काफ़ी फिल्म्स, स्टोरीज, बुक्स वगैरह में ये बोलते हैं कि फ्रेंड्स लाइक सब चीज़ों में साथ नहीं थे, लेकिन ये ट्रुथ नहीं है. आप सबको मैं बता दूं, एक फ्रेंड अपनी लाइफ में ऐसा रखना जो आपकी फैमिली से भी आप बिल्कुल आगे रखो, क्योंकि वही आपको आगे ले जाता है हर चीज़ में. एक बार को फैमिली आपको किसी भी चीज़ में सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन फ्रेंड आपको हर चीज़ में सपोर्ट करेगा. मेरा मानना यही है. यामिनी, आपने काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को फ्रेंड्स के चलते बताई, तो मैं और कुछ जानना चाहता हूँ. लाइक आपको कहाँ पे वो इम्पैक्ट किया, कहाँ आपको लगा कि हाँ फ्रेंडशिप मीन्स लाइक लाइफ है और जो भी चीज़ है, तो वो आप लिसनर्स को बताएं कि आपको कहाँ इन्फ्लुएंस करती है फ्रेंडशिप. मेरा ये मानना है कि लाइफ में वक्त पे जो काम ना आए वो यार नहीं,
तो जो वक्त पे काम आए और जो बेबाकी से आपको बोल सके कि आप यहाँ गलत हैं, वो आपका असल मायने में यार होता है, जो आपको करेक्ट कर सके, हर मुकाम पर हर जगह आपका साथ दे सके। मैं ये मोमेंट एक शेयर करना चाहूँगी जब मेरी मदर का डिमाइस हुआ था। मैं यहाँ नालचिक में थी, रशिया में, और उसके बाद फिर मेरे कुछ दोस्त, ज्योति साइमन ऑफ कोर्स वो थे ही साथ में हमेशा से, बट ऐसे भी दोस्त होते हैं जो वक्त के साथ छूट जाते हैं, पर जब आपके पास मुसीबत आती है तो दोबारा वो आते हैं, चाहे वो मैं पेरी बोलूँ या फिर लकी हो, पेरी हो या फिर संस्कार, सभी ने मेरा उस टाइम में बहुत साथ दिया है और मैं ये कभी नहीं भूलूँगी लाइफ में। लाइफ में वो मोमेंट मेरे लिए ऐसा था जब ज्योति मेरे साथ में थी, तो वहीं प्राची बहुत ज़्यादा मुझे, शी इज़ मोर लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। आई वॉन्ट टू टॉक अ बिट अबाउट मोर अबाउट हर. I'm first I was really angry person. Even now I am that. I'm controlling much more on my mental thing, but I'm much more like that. But she was like, ओए बता ना क्या हुआ, ओए बता ना प्लीज, क्या हुआ बोल दे, बस नाराज हो गई क्या मुझसे. बट that means a lot because कोई भी अपना ईगो नीचे रखकर आपसे बात नहीं करता, because but she is the one who always make me smile. तो या प्राची कौरव. सो दैट्स द इंसिडेंस. एक बार को ऐसा हुआ था कि जब हम साथ में जा रहे थे, कैब वाले ने मेरा नंबर मांगा एंड प्राची इंस्टेंटली सेड शी इज कमिटेड एंड आई स्टार्टेड लाफिंग एंड शी वाज लाइक व्हाई आर यू एंटरटेनिंग हिम. एंड सो या दैट्स द मोमेंट कि एक मोमेंट ऐसा होता है कि जब आपको उनकी नीड होती है, तो आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल टुवर्ड्स द होल यूनिवर्स एंड गॉड कि मैंने जो भी लाइफ में चाहा, मैं हर उन चीज़ों से सीखी. मैंने अपने हर दोस्त से कुछ ना कुछ सीखा. मुझे हर मेरे दोस्त से जितना एक्सपेक्ट नहीं हुआ उससे बहुत ज़्यादा मिला है. कुछ छूट गए वक्त के साथ में, कुछ साथ में चल रहे हैं और वो आगे तक चलेंगे. होप सो सारी चीज़ें अच्छी हों आपकी लाइफ की. आप एक चीज़ बताएं मेरे लिसनर्स को. आपकी आपने स्कूल लाइफ कंप्लीट कर ली, कॉलेज लाइफ कंप्लीट कर ली, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली, तो आप क्या लाइक एडवाइस देना चाहते हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, आपके कॉलेज टाइम पीरियड, आपके स्कूलिंग टाइम पीरियड, जो आपने लाइक ऐसा सोचा हो कि नहीं होना था और कुछ चीज़ें ऐसी जो नहीं सोचा था वो हुई, तो ये कैसे आपके साथ चीज़ें हुई? मैं इसको थोड़ा अच्छे से बताना चाहूँगी. ये ऐसा हुआ था कि मैं यहाँ आने से पहले आई वॉज डूइंग BSc. I was doing a bachelor's in biotechnology in India because I opt for medical college. I get selected for the क्या बोलते हैं वो private medical colleges. But then I came to know that my father instantly said that you have to go to Nalchik and outside of India. And I was more kind of person that I wanted to explore India, but I never thought of exploring outside India. But now I'm sitting in front of you in Russia. So I was like, before this, ऐसा था कि लाइफ में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं MBBS छोड़ करके फिर BSc करूँगी, फिर BSc से फिर MBBS करूँगी. बट आई स्टार्टेड एक्टिंग लाइक कि हाँ मैं मेडिकल स्कूल में हूँ, आई एम डूइंग this and that and I'm doing ki surgeon wali thing, yes, give me the scissors and everything. I started acting like that and that eventually happened. मैं आपके सामने बैठी हूँ यहाँ पर. सो एक मेरी एक्सपीरियंस ये थी कि नेवर एवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स. इट विल डेफिनेटली कम ट्रू इफ़ यू विल ट्रूली बिलीव इन दैट, बिकॉज इट टीचेस यू अ लॉट. इट gives you freedom to be who you are. It gives you that confidence. तो वो चीज़ें हैं. एंड एट द एंड ऑफ दिस कॉलेज लाइफ में से बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे, हर दिन आएंगे, हर पल में आएंगे जब आप ब्रेक डाउन करोगे. बट नेवर एवर गिव अप ऑन यू. बट यू आर द ओनली वन टीचर ऑफ योर सेल्फ. कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको कि आपको कौन कैसे पढ़ा रहा है, कौन क्या कर रहा है. आपको हर मोमेंट एंजॉय करना है. बट विद दैट यू हैव टू कीप इन माइंड that why are you here. You have to give your 101% for that one thing so that your parents will be proud one day and they will say that yeah, she is my daughter. That's good.
काफी And about advice I would say कि लाइफ में जब भी ऐसा हो कि आपको लगे कि ये चीज़ें मुझसे नहीं हो रही, ऐसा बहुत मोमेंट आएगा मेरे भी लाइफ में, इवन आज भी मैं ये फेस करती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, दिस इज़ इट, अब मेरे इतने सारे दोस्त इतने सारे पैसे कमा रहे हैं, दे स्टार्टेड अर्निंग एंड व्हाट एम आई डूइंग फ्रॉम लास्ट 10 years, आई एम स्टिल स्टडिंग एंड तो वो वाली चीज़ आती है लाइफ में, but instantly you have to switch your mind and say that no, I am creating that life for me that I really believe in. So it's your perspective. So this is my advice ki never ever take yourself or underestimate yourself at any condition. सुन लीजिए भाई लिसनर्स, आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ थी ये। काफ़ी इन्फ्लुएंस किया आपने आपके सवालों से, आपके जवाबों से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ, मैं भी हुआ। काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को भी जानने को मिली और लिसनर्स सुन ही रहे हैं। बाकी अभी मेरे पास हैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, थोड़ा फ़नी प्रोग्राम को फ़नी बनाने के लिए। तो मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जो हम रैपिड फायर में यूज़ करने वाले हैं और बात करते हैं आपके मतलब जर्नी के उसमें ही रहेंगे, आपके एक्सपीरियंस के उसमें ही कैसे क्वेश्चंस है, आपको सरप्राइज मिलेंगे एकदम। तो सबसे पहला, आपका कोई मोस्ट एम्बैरेसिंग कोई मोमेंट हो जो आप कभी नहीं भूली हो? Okay. Instantly, I laughed, heard about this. When I first came here in Nalchik, I thought that everybody is talking in Russian. Nobody knows Hindi. I was like, everybody has their own crush in life. Even I am. I'm not like she's a doctor. She don't have a crush. She's like keep studying and going on. So once a day, I was in Shreda over here, and I was talking to one of my friend. And she was like, देख वो तो अच्छा दिख रहा है ना, and I was like, yeah, she is too handsome, she is so good looking, I just want to be with him for a while, I just want to talk to him. And he said, I said in Hindi, and he was like कि okay, are you from India? आप हिंदी में बात कर रहे हो? And that one moment I was like, my facial expression was like, do you understand Hindi? And he was like, yes I do, and you're good. I think So yeah, he's from Afghanistan. I don't know where is he from. I just ran away from there, and I didn't look back at him. Okay. So I don't know. My second question to you, what superpower do you wish that you have? Superpower, okay. To be the utmost level in life, and for there I want one superpower. I want to read everyone's mind. Oh, That's yeah. ये बहुत अच्छी like, हर इंसान इस चीज को like करेगा कि मुझे ये सुपर पावर चाहिए। और मुझे ऐसा चाहिए ना कि not only I can read everyone's mind, and instantly when he was negative or thinking something shit about me or anyone about it, I'm like, are you thinking this? Just think about it. So next time when he thought of anything, she should be always positive. So I want that. It will make the life better. Who is your celebrity crush? Salman Khan, Oh. to be honest. Today is I think किसी की भाई किसी की जान is releasing I think today. Of course. So you are going किसी to का watch? भाई किसी की तो जान, आप and जा- for me he is my जान, not भाई. So, आप जा रहे हो देखने? हाँ बिल्कुल. Okay. I was in rush because you are also important for me, and I can't let him go at any cost. He is my like childhood crush. I have everything, and whatever I am thinking about it, I want to serve the humanity. I want to be a billionaire. I want to stand up in my utmost level in life. That is all came. And one more thing, everyone said about it, he is a criminal, he is this and that, but what you do after your mistakes, that defines you, and he corrected it. So I admire him the most. सलमान खान, Of course. भाईजान। Not my judge. Okay. So आपका like कोई ओपिनियन जो आप जिससे मोस्ट डिसएग्री हो, कोई भी ओपिनियन जिससे like Okay. आप डिसएग्री हो या फिर कभी आपने ऐसा सोच लिया हो कि बाद में आपको रिग्रेट फील हुआ?
I would say I don't have any regrets because I have learned from all of my mistakes. But opinion, yes, I would. Maximum people will disagree with this because uh, I think this makes me what I am and this makes me unique. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में दिस इज व्हाट्स द मेंटालिटी ऑफ एवरी of maximum Indian people. If you are stepping towards your goal or you're doing something better in life, they will pull you or pull you down, and that is completely that I don't like it. So I am that kind of person. Like, I can influence people. I want to see me. I want to adore the way I admire myself. So that they will keep these jealousy. They won't keep this kind of jealousy or these things with them. कि वो मैं चाहती हूँ कि वो जैसे मैं ग्रो करूँ तो मेरे साथ साथ वो भी ग्रो करे, वो भी आगे चले. मैं बिल्कुल इस चीज़ से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि लोग जो कहते ये हैं. अच्छी थिंकिंग है आपकी. कि- मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ के लिए. आपने बिल्कुल. एटलीस्ट ये चीज़ सोची है. मेरा ये मानना है लाइफ में कि एज मच एज यू ग्रो इन लाइफ, if you'll energize your everything in jealousy or bad things, then eventually it will affect you. So rather than that, you should think in a positive way and influence other people and hold their hands and just do good for the humanity, just serve the people, just do your best. सो हमारा रैपिड फायर ख़त्म होता है. अब आप कुछ ऐसी चीज़ जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ और आपको बताना है, जो लगता है आपको कि मेरे लिसनर्स को जानना ज़रूरी है, तो आप प्लीज़ मेरे लिसनर्स को बताएं. Of course, I am a big admirable of my mother, so I really want to talk a bit about my mother. This is my first show, and I want to do it more. Inshallah होगा भी. होगा. And ऐसा है कि मेरी mother, she was not that much well studied background, because back in India, when there was a time that eventually the ladies or the women get married soon. Because of that, she gave up on her dreams, she gave up on everything, but she never gave up or quitted on what she wanted. And everything that I am learned from her. My brother, he's a cerebral palsy patient, but every doctor gave up on him, that he will never ever stand up on his feet. But my mother never took her mental ability for granted. She started that how can ये कैसे नहीं हो सकता, वो एक दिन खड़ा ज़रूर होगा, दौड़ेगा भी. उसका मोटर रिस्पॉन्स 70% उस टाइम नॉर्मल नहीं था, अब जो कि नॉर्मल है. तो ना कि मेरी मम्मा ने सिर्फ मेरे भाई को खड़ा किया, आज वो हर काम, हर वो चीज़ खुद से करता है. इनफैक्ट मैं ये बोल सकती हूँ मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है. सो never ever underestimate any people in your life. That I always learned from my mother. And nobody ever can define you if you think in your mind. So everything starts from your mind. Every decision of yours is that makes you who you are. So always believe always believe that this is what I can do, this is what. If you don't think ki this is a particular thing and I can't do, then you won't do it anyway. Nobody is there to define you or to tell you that this is what you can do and this is what you don't do. So this is the one thing that I can say. थैंक यू सो मच यामिनी. आपके जितने भी जवाब थे, आंसर्स थे, आपने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया मुझे भी और मेरे लिसनर्स को भी. और होप सो सब लोगों को काफ़ी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी. और कंटिन्यू करेंगे हम इस शो को नेक्स्ट एपिसोड के साथ. आज का दिन था हमारा यामिनी स्वर्णकार के साथ. ये काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं यहाँ पे और ऑलमोस्ट ग्रेजुएट होने वाली हैं, 1 या 2 महीने में ग्रेजुएट हो जाएंगी. और नेक्स्ट जो एपिसोड है हम शूट करेंगे जल्दी ही. और ये जो सीरीज़ है ये आने वाली है हर वीक फ्राइडे इवनिंग में. सो होप सो आप लोग पसंद करेंगे और मिलते हैं जल्दी ही अगली सीरीज़ के साथ, अगले एपिसोड के साथ.
तब तक के लिए थैंक यू सो मच यामिनी। थैंक यू सो काफ़ी इन्फ्लुएंस किया यामिनी स्वर्णकार ने, जैसा कि आपने देखा, और होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। और नेक्स्ट जो एपिसोड है वो एक स्पेशल गेस्ट के लिए है। नेक्स्ट फ्राइडे इवनिंग आपको नेक्स्ट एपिसोड मिलेगा, और जल्दी ही शुरुआत कर रहे हैं सीज़न का, लाइक लाइफ का एक नया जर्नी है ये। लास्ट 2 साल से मैं बिल्कुल, मेरे माइंड में ऐसा था कि मेरे को पॉडकास्ट शो स्टार्ट करना है, पॉडकास्ट शो स्टार्ट करना, फाइनली ये स्टार्ट हुआ। और थैंक यू सो मच यामिनी, आपने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया पीपल्स को और मेरे लिसनर्स को, मुझे भी किया। और होप सो आप लोगों को मज़ा आया हो, और इन सब चीज़ों के लिए आपको जुड़ा रहना पड़ेगा मेरे चैनल से। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे, लेता हूँ विदा। हर हर महादेव, जय श्री राम।